Okay. Now this says that individual greed and selfishness, जो लोग individually जो greedy हो गए हैं, उनको सब कुछ चाहिए, और selfishness होता है सिर्फ खुदगर्जी, अपने आप अपने लिए करना, किसी और का नहीं सोचना. That has been the basis of the modern society. तो modern society का basis individual greed और selfishness बन गया है. Some people think, और कुछ लोग सोचते हैं, we must return to the older and more traditional values of respect for the family and local community in order to create a better world to live in. अब इसके साथ ने डिसएग्री करना है कि हमें पुराने ट्रेडिशनल वैल्यूज की तरफ चले जाना चाहिए ताकि ये दुनिया को हम बेहतर बना सके रहने के लिए. क्या आप इससे सहमत हैं कि नहीं? मैंने स्ट्रांगली एग्री करके कहा है. ठीक है. So it is believed by some that we should go back to the old values in which the family and the local community was given respect. मैंने चेंज करा इंट्रो, जो उसमें मैंने कोटेशन डाली हुई सब हटा दी है मैंने. ओके. सो अब जो भी मैं फाइल शेयर करा करूँ ना, वो ऐसे उनमें से करने हैं, और जिनके पास बुक है और बुक वाले में ही आपने हाथ से करेक्शंस कर लिया करना. ठीक है. सो पहला सेंटेंस तो हो गया पैराफ्रेजिंग. बलजी ठीक है? यस मैम ठीक है. उसके बाद मैंने strongly agree करा. I strongly agree that we must revert to the golden times when we valued traditions and respected the elderly and our neighborhood, so that we have a happier today and a happier tomorrow, ताकि हमारा आज भी खुश होए और आने वाला कल भी खुश हो जाए, अच्छा रहे. तो ये इंट्रोडक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी. नो मैम. ओके. अब टॉपिक सेंटेंस ये पुराना लिखा हुआ है, उसमें हो सकता है. लेट अस सी. टुडे वी लिव इन एन era of technology in which the whole earth has shrunk and become a global village. Everybody is connected to everybody through telephone lines and the internet, but the warmth of relationships has taken a back seat. Most people have more than enough wealth, comfort and freedom, but their hearts desire even more. To satisfy their heart's greed, people have become workaholics, and as a result have no time for family and friends. People have become selfish, isolated and indifferent. Each person is busy in his own quest for more. To add to it, the youngsters who are at ease with the new technology think that the elderly are good for nothing, and that is why they do not respect them. So अब इसको ये कर लेते हैं. How इसकी first line कुछ ऐसे बनाते हैं जो ऐसे के साथ जाए. So what can you do? There are many reasons. The main reason, okay, the main reason why we should return to the old methods. We should go back. The main reason why we should go back to the past ways of life. Is that is that the modern lifestyle is making people unsocial, self-centric. self-centered कर सकते हैं. हाँ. ठीक है. उसके बाद today we live, ये ऐसे का ऐसे चल सकता है. The whole earth has shrunk and today everybody is connected to everybody, ऐसे कर देते हैं. Everybody is connected to people are connected to each other, ऐसे कर देते हैं. Everybody is connected to everybody थोड़ा informal है. So people are connected to each other. To each other
through telephone lines and the internet, but the warmth of relationships has taken a back seat. Self-centered के बीच में hyphen, ठीक है? Most people have more than enough wealth, comfort and freedom, but their hearts desire even more. To satisfy their heart's greed, people have become workaholics and so they have no time. उसी को expand करा है, ठीक है? People have become selfish, isolated and indifferent. Is making people selfish, isolated and indifferent. मैं first line में डाल रही हूँ ये, जहाँ self-centered डाला है ना, वहाँ ये डाल रही हूँ और यहाँ से ये पूरा हटा दूंगी. ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये पूरी यहाँ से हटा दूंगी. Each person is busy in his own quest for more. Quest word आ गया यहाँ पे आज. We did it in the reading. Remember? Yes, ma'am. Quest for more. So ये सारा हो गया आपका पहला पैरा. The main reason that modern lifestyle is making people selfish, isolated and indifferent. हमें क्या? किसी को कुछ हो रहा है हमें क्या? ये होता है indifferent. सानू की पंजाबी. Okay. On the other hand, life in the past was slower and simpler. People loved and respected each other's. Family members had a lot of face-to-face contact with each other. Older members of the family were well looked after and their advice was valued. फिर पुराना time क्यों better था और क्यों हमें return करना चाहिए? ठीक है, divorces were very rare as marriage was considered a sacred institution. Moreover, community get-togethers were often organized and people knew the farthest neighbors. Nowadays, the next-door neighbors are also not recognized. There were lesser worries, less worries. Lesser कोई word नहीं है. देखो ऐसी गलतियां मेरी निकल रही हैं पुरानी. Less worries and tensions in earlier times. It is less, lesser, lesser. ऐसा कोई word नहीं है. Little, less, least. ये है 3 forms adjective के. तो lesser word नहीं है कोई. Okay. To conclude, living in the modern toxic world, we are all slowly being poisoned to death. Therefore, it's clear that traditional value-based society is a better world to live in. Okay. So ये अब जो अगली ये पूरा भी मैं निकाल दूँ ना तो भी I think word count जो है ये let me see इसके बिना कितना word count है इससे का. This is how we make you write. Good enough, 305 words. उसको भी निकाल दो last वाला. एक ही line रहने दो. बाकी cut off कर दो. Therefore, it's clear that the traditional value-based society is a better world to live in. तो इसको बाकी सारा हटा दो. 305 words फिर भी बन गए. So this is a good essay now. Okay? Yes, ma'am. तो change हो गया? Yes. Yes. मैम इसमें जो BP2 है on the other hand करके और advantages लिख दे रही है कि जो past की advantages थी. देखो पहले पैरे में present के disadvantages हैं और second पैरे में past के. पहला पैरे में present की बात है, दूसरे में past की, तो on the other hand सही है. हाँ जी. Okay मैम. Okay. हाँ जी. Okay. Thank you. ठीक है, ये भी ऐसे आपकी हेल्प से मेरा मॉडिफाई हो गया. नाउ वील गो टू द एसे ऑन स्पेस रिसर्च. ओके, और ऐसे मेरे को बता दिया करो अगर आपको कोई ऐसे नहीं अच्छा लगा. दैट हेल्प्स मी आल्सो. नाउ दिस इज द एसे. ये बुक में कौन सा नंबर है? 377. ओके. So the essay is, in the last century, when a human astronaut first arrived on the moon, he said, it is a big step for mankind, but some people think it makes little difference to our daily life. To what extent do you agree or disagree? अब आपने कौन से सेंटेंस के साथ एग्री डिसएग्री करना है? कौन सा सेंटेंस है जो फैक्ट है और कौन सा सेंटेंस है जो कोई कह रहा है जिससे आपने एग्री डिसएग्री करना है? इसको रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है. ओके. पिछली सदी में, इन द लास्ट सेंचुरी, when a human astronaut, जब एक human astronaut पहली बार मून पे गया, अराइव हुआ, उसने पता है क्या बोला था? It is a big step for mankind. उसके ये आधा सेंटेंस है, ये आधा सेंटेंस है. उसने एक पूरा सेंटेंस बोला था. ये आधा सेंटेंस आजकल खाने का फैशन है. ये फैशन है, पता है आपको? It is a trend. मैं मजाक में नहीं कह रही हूँ, ये सच में ट्रेंड है. अब जैसे हमारा एक पुरानी कहावत है, मैं आपको समझाती हूँ. जो पुरानी कहावत है, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड. आजकल पूरा कभी नहीं बोलते क्योंकि सबको पता है कि इसका दूसरा हिस्सा सबको पता है, तो बोलेंगे फ्रेंड इन नीड. ओके, अ फ्रेंड इन डीड आपको पता है, सो वो बोलने का फैशन नहीं है. वो बोलोगे तो आप क्या हो जाओगे? ओल्ड स्कूल. ओके, ठीक है. तो द प्रूफ ऑफ द पुडिंग, अगला हिस्सा लाइज इन द ईटिंग.
ठीक है, वो भी अब आजकल उसका भी वो पुराना हो गया, तो उसको भी आधा ही बोलते हैं प्रूफ। अब यहाँ पे भी उसने पूरी लाइन क्या बोली थी, आप में से किसी को पता है? मुझे पता है, बिकॉज मैं छोटी थी तब भी मैंने सुनी थी और मेरे को तब की याद है। उसने पूरी लाइन क्या बोली थी नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, जब उसने पहला कदम मून पे रखा था अपने रॉकेट से उतर के? आधा हिस्सा तो आपके सामने है, इसका इसका पहला आधा हिस्सा क्या था? Does anybody remember or know about it? I think it was something like, it is a small step for man, a big step for mankind. क्योंकि वो मैन अकेला अगर आदमी का देखे तो उसने तो छोटा सा कदम रखा ना, बस उसने एक कदम रखा मून पे। उसने बोला इट्स ए स्मॉल स्टेप फॉर मैन, बट पूरी मैनकाइंड के लिए बहुत बड़ा कदम था कि मून पे पहला कदम रखा गया है। समझ गए? ठीक है, सुन रहे हैं ना? हाँ, यस मैम। तो अब ये तो फैक्ट हो गया ना। अब ये इसके साथ एग्री डिसएग्री थोड़ी करेंगे, नहीं जी नहीं उसने नहीं बोला था, उसने कुछ और बोला था, आप बोलोगे ऐसे उसने ये नहीं बोला था, तो इसके साथ तो एग्री डिसएग्री पूछ ही नहीं सकते, ये तो फैक्ट है। ठीक है, अब अगला स्टेटमेंट आ रहा है जिसके साथ आपने एग्री डिसएग्री करना है। बट सम पीपल थिंक इट मेक्स लिटिल डिफरेंस टू आवर डेली लाइफ। अब मेरे को लिटिल का मीनिंग बताओ, जो नए बच्चे उनमें से कोई बोलेगा, पुराने वालों को सबको पता है, मुझे पता है, मैं इसका रोज वो करती हूँ, क्या कहते हैं, इसका बताती हूँ। Anybody first there? What does little mean? रजनी बहुत डिस्टर्बेंस है। लेस। Little means less. मैम Okay. एज, Little means yes आमिर? एज मैम। No, edge तो बिल्कुल नहीं। Little. फ्यू मैम। Few तो काउंटेबल चीजों के लिए होता है, उसका सेम मीनिंग है लिटिल जैसे। लिटिल अनकाउंटेबल चीजों के लिए होता है। मैम थोड़ा सा। थोड़ा सा, लिटिल का मतलब थोड़ा सा नहीं है, लिटिल का मतलब है नो। ओके, अगर आपने इसका नो मतलब देखो, आपको मैं समझाती हूँ अच्छे से ये बात। आज कई बच्चे नए हैं और ये रीडिंग में आपको बहुत हेल्प करने वाली बात है। ओके, ये ना रजनी आपके पीछे बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है, प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूटेड अंटिल यू हैव टू स्पीक समथिंग। ओके, लिटिल का मतलब है, देखो लिटिल, लिटिल पहले तो लिटिल और फ्यू का मतलब समझ लो। लिटिल होता है जो चीजें हम गिन नहीं सकते, और फ्यू होती है जिन चीजों को हम गिन सकते हैं। ओके, जैसे मैं स्टूडेंट्स काउंट कर सकती हूँ मेरे क्लास में कितने बैठे हैं। अगर मैं क्लास में एंटर हूँ और मैं बोलूँ आई नो फ्यू स्टूडेंट्स इन द रूम, इसका क्या मतलब? गिना जाएगा। यस मैम। इसका मतलब है आई नो नोबडी इन द रूम। यस मैम। ओके, इफ आई से आई नो अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द रूम, इसका मतलब अगर क्लास में 30 बच्चे बैठे हैं तो मेरे को 3-4 के बारे में पता है। ओके। अ फ्यू मीन्स थोड़ा सा, एंड क्वाइट अ फ्यू इसका मतलब है बहुत ज्यादा। आई नो क्वाइट अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द रूम, मेरे को 30 में से 27-28 का पता है कौन है, 2-3 को नहीं मैं जानती। अब तीनों में फ्यू आया ना। यस मैम। और मीनिंग तीनों का बिल्कुल डिफरेंट है। यस मैम। पहले फ्यू का मतलब है ना के बराबर, मतलब नेगेटिव आंसर है इसका। इसका मतलब है आई नो फ्यू, आई नो नोबडी। ओके, लिटिल डिफरेंस का मतलब है नो डिफरेंस। अ लिटिल का मतलब है थोड़ा सा डिफरेंस, एंड क्वाइट ए लिटिल का मतलब है बहुत सारा डिफरेंस। ओके मैम। ओके, यस मैम। तो इज दैट क्लियर? अब Yes. अगर आपको ये मीनिंग नहीं ना पता तो आप पूरा एसे टास्क अचीवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल कर दोगे, अंडे वाला ओवल। ठीक है? यस मैम। हाँ, क्योंकि Thank you. बच्चे लिख चुके हैं ये Yeah. ऐसे, और उसमें लिटिल डिफरेंस का थोड़ा सा डिफरेंस बता के उसके पैरे बना चुके हैं कि ये डिफरेंस होता है लिटिल। ठीक है, फिर मैं कहती हूँ गलत है तो फिर कहते हैं मैम लिखा हुआ है लिटिल डिफरेंस तो होता ही है ना। लिटिल के बारे में एक पैरा बनाया, क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो Yes.
हाँ, but some people think it makes little difference to our daily life, means it makes no difference. To what extent you agree? अब आपको ऐसे समझ आ जाएगा. अब आप इससे डिसएग्री कर एग्री कर सकते हो, नहीं डिसएग्री कर सकते हो दैट इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू आवर डेली लाइफ. अच्छा, आपको पता है स्पेस रिसर्च के जो फायदे हैं, हम उन फायदों को एंजॉय कर रहे हैं. आपको पता है अपनी डेली लाइफ में आप सैटेलाइट टीवी देख रहे हो, वेदर फोरकास्ट हो रही है. यस यस मैम. आप स्मोक अलार्म देखे आपने, फॉरेन हर घर में होते हैं लकड़ी के घरों में. हाँ, फिर आप पेस मेकर है हार्ट पे. फिर आपको पता है ये जो मोबाइल ओटी वगैरह सारे जो हाइड्रोलिक टेबल्स है ऑपरेशन थिएटर के, ये सबसे पहले किसके लिए बनाए गए थे? स्पेस रिसर्च के लिए. फिर आपको पता है जो आर्टिफिशियल लिम्स है लेसर वेट के, बिल्कुल लेसर वेट, ऊपर ग्रेविटी नहीं ना होती तो भारी चीजें ऊपर काम नहीं करती, तो लेसर वेट की चीजें बनाई जाती हैं स्पेस के लिए. वो टेक्नोलॉजी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने वो टेक्नोलॉजी किस में यूज करी? आर्टिफिशियल लिम्स ऑफ लेसर वेट बनना, लेस वेट बनाने के लिए. ये जो हमारे फिजिकली चैलेंज लोग हैं, पहले रबड़ की भारी सी टांग लगती थी, अगर किसी की टांग नहीं है तो आते ही घर पहले उठा के फेंकते थे कि रेंग लेंगे नीचे, पर ऐसी लेग के साथ नहीं चलना, ये तो बहुत भारी है. अब इतनी लाइट फेदर लाइट बन गई है आर्टिफिशियल लिम्स, पता ही नहीं चलता, सारा दिन लगा के रखते हैं. किसी की आर्म नहीं है वो लगा के रखता है एस्थेटिक अपील के लिए, या लेग नहीं है. तो ये आपको समझ आ गया कि ये मतलब हमारी डेली यूज में कितनी काम आ रही है स्पेस रिसर्च. तो आप इससे डिसएग्री कर सकते हो ना सेफली. यस. और फिर आप Yes, ma'am. आप अच्छा, आपने कभी दिवाली पे चक्री चलाई? यस. जो चक्री के आसपास जो जो उसके बिल्कुल चक्री के पास जो आग निकलती है, वो तो होगी स्पेस रिसर्च में काम आने वाली जो भी उसकी टेक्नोलॉजी. और जो चक्री की चिंगारियां दूर दूर तक गिरती है उनको कहते हैं स्पिन ऑफ्स ऑफ स्पेस रिसर्च है, जो हम यहाँ अर्थ पे बैठे एंजॉय कर रहे हैं. दोज आर द स्पिन ऑफ्स. मैंने ये वर्ड डाला हुआ है तो आप स्पिन ऑफ्स का मतलब ही मैंने आपको सिखा दिया. ठीक है, तो अब ये ऐसे मैं एक बार क्विकली पढ़ देती हूँ. अब आपको मैंने समझा दिया है, अब आपको बिकॉज मैंने समझा दिया है, अब आपको एक बार पढ़ने पे पूरा समझ आ जाएगा. ठीक है. Almost every day we read something in the papers about the latest exciting developments in the space race. Many people are of the view that all the money and energy spent on space exploration and research is a complete waste because it has no effect on our daily life. अब मैं ना ये पहली लाइन जो है मैं इसमें से निकाल सकती हूँ, बिकॉज मैं जो अब एडवोकेट करती हूँ, हम सीधा कहते हैं कि स्ट्रेट अवे जाओ अपना 2 सेंटेंस इंट्रो बनाओ और 2 या 3 सेंटेंस और इसको लिख दो. So many people are of the view that all the money and energy spent on space exploration and research is a complete waste because it has no effect on our daily life. I strongly disagree. मैं ये I however disagree की जगह भी इसको भी change कर लेते हो. I strongly disagree with this view. तो फिर उसके बाद स्ट्रॉन्गली उसके बाद लिख सकते हो in the following paragraphs I shall discuss how space research has touched our lives in more ways than one. ये तो ठीक है, this is good. Okay, I believe that space research has many benefits, advantages for people on earth also. ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है, तो इसका ये आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गई. लेटेस्ट जो सिंपल से सिंपल है. कैन यू राइट एन इंट्रो? यस मैम. ओके, फिर उसके बाद स्पेस रिसर्च हैज टच्ड द लाइफ ऑफ द कॉमन मैन इन myriad ways. बड़ी many ways, many कर दो वर्ड अगर myriad मुश्किल लगता है. The secondary uses of space research are called spin-offs. तो secondary uses है, primary use तो स्पेस पे जाने के लिए, secondary use होता है जो एक एडेड यूज हो रहा है, जो सेकेंडरी यूज है. प्राइमरी तो ये यूज नहीं है, पर सेकेंडरी यूजेस ऑफ स्पेस रिसर्च आर कॉल्ड स्पिन-ऑफ्स. द कॉमन स्मोक डिटेक्टर यूज्ड इन होम्स वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड फॉर एयरक्राफ्ट्स, spacecrafts as a warning system. Computer barcodes in retail stores, shock absorbing shoes used by tennis players and athletes, lightweight materials used for helmets and sporting materials, and non-stick coating used in pans were all first developed as part of space research. समझ आ गया? फिर उसके बाद space technology has provided many benefits to the medical profession as well. तो इसके फिर उसके बाद मैंने मेडिकल pacemakers used to treat cardiac as well as remote monitoring devices for intensive care patients and portable medical equipment.
pacemakers used to treat cardiac ailments, as well as remote monitoring devices. And remote monitoring devices for ICU, intensive care patients. नहीं, यहाँ पे and हटा दो, बाद में and आएगा. Remote monitoring devices for intensive care patients and portable medical equipment carried aboard ambulances are but a few applications of space technology, providing daily benefits in hospitals, offices and homes. Artificial limbs of lesser weight की भी बात कर दी है. Less weight, ठीक है, are also a byproduct of space research. And these are a blessing for the physically challenged. Okay. उसके बाद, not only that, it is well known that global warming will soon transform our Earth into a boiling pot. Then it would be very essential to find alternative places to live. If we were able to find signs of life elsewhere in space, it would be a jackpot for mankind. What is a jackpot? Lottery. Lottery, yes. To sum up, space exploration and research has touched our lives, everyday lives, in numerous ways. So it definitely is a big step for mankind. Okay, ये हो गया space research का ऐसे. But today was my speaking test. Oh, what did you get? And the same cue card जो मैंने आपको सुनाया था ना, वो the difficult decision that you made. Oh, Adish, so you should get an 8. अच्छा बोला वहाँ पे? अच्छा तो मैं बहुत बोला. अच्छा, चलो, let's hope you get an 8 this time. 8 plus, I would say. Examiner fair हो, अच्छा बोलते हो आप. Okay. बाकी intro sets, follow-ups में क्या थे questions? Follow-ups में वो basically उन्होंने पूछे questions regarding individual decision making and group decision making. Okay, तो decision making पे जितने essays है ना, mark those as guesswork. Okay, you can get any of those essays. की the best decision young people have to make is the career, या should parents take decisions for their children or should children make decisions. ये सारे essays हैं book में, so do all these essays. नहीं, मेरा वो भी हो गया LRW. उसमें क्या आया? उसमें सब जो राइटिंग थी टास्क 1, तो वो था कि आपके जो एरिया में ना स्पोर्ट्स फैसिलिटीज काफी कम है. ओ, मेरे बुक में फर्स्ट लेटर. हाँ. जो टास्क 2 था ना, वो भी आगे बुक में से, वो जो एक था कि creative writing should be there in schools. नहीं, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन. ओह यस, कार्बन टैक्स वाला. यस. और वो ऐसे एकेडमिक की बुक में भी है, सेम ऐसे कार्बन टैक्स. वही डिस्कस बहुत. देखो, ये कहते हैं टेक्निकल एसेज आते नहीं जीटी को. जीटी की बुक में ये ऐसे है, पहले आ चुका है. बिल्कुल सिमिलर एसेज हैं, ये भी बुक में है. दोनों चीजें बुक से आई है. वेरी गुड. हाँ, चलो. इंट्रो सेट्स में उन्होंने बेसिकली पूछा रिगार्डिंग होम टाउन, पूछा कि ये मतलब फ्यूचर के रहने के लिए ठीक रहेगा. ओके. तो आपने मतलब कैसे, अब पास्ट मतलब आपको कैसा लग रहा है यहाँ रहते? What is your home town? लुधियाना. ओके. चलो, लेट अस होप आदिश आपका अच्छा सा रिजल्ट आए. एंड वी विल बी कांग्रेचुलेटिंग एंड शेयरिंग इन माय ऑल ग्रुप्स. चलो, all the best for your results now. Okay. Okay, ma'am. Okay, so this next essay is, in the future, it seems it would be more difficult to live on Earth. Some people think more money should be spent researching on other planets to live, such as Mars. To what extent do you agree or disagree? Okay. अब मैंने ना एग्री करके भी ऐसे बन सकता है, और स्पेस रिसर्च के पूरे फायदे जो हमने पिछले उसमें लिखे हैं, बस सिर्फ लिविंग के लिए और ढूंढने के लिए, उस हिसाब से हम लिख सकते हैं. एग्री कर सकते हो, ठीक है, कि ज्यादा पैसा स्पेस रिसर्च पे लगाना चाहिए. एग्री करके भी ऐसे बन सकता है. सो यू कैन स्ट्रांगली एग्री एंड से मोर मनी शुड बी स्पेंट ऑन स्पेस रिसर्च. मैंने इस ऐसे में एक तरह से मैंने कंसेशन दे दिया है. मैंने बोला है कि while space research is important, it is more important to find to बाकी जो अर्थ पे जो स्पेंड करना है, that is more important. तो मैं ये इंट्रोडक्शन पूरा ऐसे पढ़ने के बाद आपके सामने इसको थोड़ा सा भी मॉडिफाई करूंगी. Okay, let us read this essay. While sentence incorporate करूंगी, but पहले ऐसे पढ़ते हैं and see what is there.
ग्लोबल वार्मिंग इज अकरिंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड का क्या मतलब है? स्पीड, अनप्रेसिडेंटेड, which we cannot predict. हाँ, विच वी कुड नेवर प्रिडिक्ट कि इतनी स्पीड कभी हो पाएगी. ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है ये नॉर्मल फिनोमिनन है, नेचुरल है. डू यू नो दिस? ग्लोबल वार्मिंग अगर नहीं होती ना तो आज हम आइस एज में बैठे होते. Yes, ma'am. ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इज नेचुरल, पर जो चेंज टेम्परेचर में 1000 साल में आना चाहिए वो अब 100 साल में आ रहा है. तो दैट स्पीड इज वेरी फास्ट. अगर इस स्पीड पे ग्लोबल वार्मिंग होती रही तो वो समय दूर नहीं है जब अर्थ पे रहना नामुमकिन हो जाएगा. अब देखो यही सेंटेंस मैंने बोला हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग इज अकरिंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड स्पीड एंड इफ द प्रेजेंट ट्रेंड्स कंटिन्यू it will become increasingly difficult to sustain life on earth. I agree that it is vital to tackle this problem, but I disagree that we should waste our resources in finding a new planet to live. I firmly believe that some other more practical solutions should be researched upon. मतलब अर्थ को ही inhabitable रखने के और चीजें देख लो rather than space पे पैसा खर्चने के. मैंने ये बोला है कि while looking into the problem of future, while it is essential to tackle, ये मैं पहले देखती हूँ स्पेस रिसर्च का. मैंने एक पैरा बनाया, while space research is important, I disagree that we should waste our resources in finding a new planet. ऐसे लिख सकते हैं, okay? While space research is important, while sentence में but नहीं आता, although में भी but नहीं आता. I disagree that we should waste our resources in finding a new planet to live. I firmly believe that some other more practical solutions should be researched upon. और फिर space research की जो importance है उसका एक पैरा बना दो. अब जो हमने पूरा पिछला essay है उसमें से कुछ एक दो points उठा के एक पैरा बन सकता है space research की importance का. बन सकता है ना? हाँ, Yes. तो एडमिटेडली करके स्पेस रिसर्च इज इम्पोर्टेंट फॉर मेनी रीजंस. और उसमें आप उसमें से 2-4 एग्जांपल्स जो दे सकते हो कि वेदर फोरकास्ट है, ये इसके स्पिन ऑफ्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑन अर्थ. तो उसके हिसाब से वेदर फोरकास्ट की, सैटेलाइट टीवी की बात कर लो, या आप जो आर्टिफिशियल लिम्स ऑफ लेसर वेट की बात कर लो. द स्पिन ऑफ्स ऑफ स्पेस रिसर्च. सो एडमिटेडली कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं. एक admittedly, space research is important for benefiting the life of humans on earth. ठीक है, उसके बाद आप डाल सकते हो फॉर एग्जाम्पल द स्पिन ऑफ्स. such as satellite TV, artificial limbs of यहाँ पे ना the featherlight artificial limbs. For the physically challenged. और कोई एग्जांपल दो.
पेसमेकर, हाँ heart problems, light weight sports shoes are just some examples, are just a few examples of how smoke detector भी लिख सकते थे, how space research is touching lives of common men. ठीक है, हेलो बहुत है। फिर however करके मैं एडमिटेड हेलो के मैम। बाद कॉमा नहीं आएगा ऊपर? आएगा आएगा however ये वाला फिर पैरा, ये वाला पूरे का पूरा ऐसे ऐसे आ जाएगा। ये देखो, आप पढ़ो ऐसे, एडमिटेडली करके स्पेस रिसर्च की इंपॉर्टेंस बता दी। हाउएवर स्पेंडिंग मनी ऑन फाइंडिंग अनदर होम इन स्पेस फॉर ऑल पीपल ऑन अर्थ would not be an effective measure. Firstly, there is little hope of seeking a planet that has favorable conditions for life. In addition, the cost of researching such a planet would be exorbitant. At a time when millions of people are suffering from poverty, homelessness, and illiteracy, it would be better to spend on the present problems and leave the future in the bucket list. I believe that instead of spending on research on space, a much better solution would be to invest in environmental projects and encourage people to lead a more environmentally friendly lifestyle. For example, green energy should be harnessed and made more available to replace our dependence on fossil fuels. People should also opt for public transport rather than driving their vehicles. Such actions can cut exhaust emissions and slow down the effects of global warming, making the earth a more desirable place for us all. अब ये ऐसे बन गया अच्छा? Yes, ma'am. हाँ, Yes. this is a better essay. और मैंने वो भी स्पेस रिसर्च वाला वो भी डाल दिया है कि उसका अपना वैल्यू है, उसके स्पिन ऑफ्स का फायदा है, वो पिछले एस्से से पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। और ये एस्से बिल्कुल बन गया, बढ़िया, चेंज कर दिया। Not that जो पहले लिखा था वो गलत था, but this is a simpler and easier understanding of the way we are writing essays nowadays. Okay, so while space research is important, I disagree we should waste our resources finding a new planet to live. Space research करो, उसके और फायदे हैं, कितने फायदे हैं उसके, सैटेलाइट टीवी आ गया, वेदर फोरकास्टिंग मिल गई, और कितने फायदे हैं उसके, ठीक है। पर कोई और प्लैनेट रहने के लिए ढूंढना, उस पर बहुत ज्यादा करोड़ों रुपए लगा देने, दैट वुड बी रॉन्ग। तो ये मैंने उसके साथ कंसेशन दे दिया, और साथ में मैंने क्या करा है, डिसएग्री विद द कंसेशन। अब कंसेशन वाला पॉइंट समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। मैम ये एडमिटेडली से स्टार्ट करना है ना, जो मतलब जिस चीज से हम एग्री कर रहे हैं, करो, जो कंसेशन है उसको एडमिटेडली करो, और जो आपका मेन है उसको हाउएवर करके दो पैरे बनाओ। समझ आ गई बात? हाँ जी, ओके। हाँ, कंसेशन को एडमिटेडली करके लिख दो। अब इसका प्लान भी चेंज है ना, पैरा 1 डिसएग्री विद द कंसेशन हो गया, एंड पैरा 1 importance of space research, importance स्पेस रिसर्च। हाँ ठीक है, ये मेरा ये प्लान फॉलोड भी ठीक हो गया, ठीक है। कौन सा नंबर है बुक में ऐसे का? 378।
Okay, so this is the essay that has been changed. और हमने पहले वाले को भी थोड़ा सा चेंज करा है, हाँ करा है थोड़ा सा. Yes, ma'am. हाँ थोड़ा सा चेंज करा है. Okay, now we come to the next essay. These are animal essays, I think. Okay. So animal essays, I'll be giving you the points. I'll be telling you how to write. But if we have to cover all the essays in today's class, then I'll not read in depth, but I'll share the file with you so that you can read them later on. Is that fine with all of you? Yes, ma'am. Okay. So the first essay is animals are in danger of extinction. What is the meaning of extinction? विलुप्त हो जाना. Yes. So animals are on the verge of extinction, are in the danger of extinction. Extinct होने की कगार पे है. Extinct हुए नहीं है, पर extinct होने की कगार पे animals. कुछ लोग कहते हैं, अच्छा आपने इसके साथ agree disagree करना है कि animals are in danger of extinction? क्या नहीं? ये fact है. ये fact. No, ma'am. It's a fact. You don't have to. Yes, it's a fact. You don't have to agree or disagree with it. अब आगे स्टेटमेंट आ रही है. Some people say, कुछ लोग कहते हैं that we should protect, कि हमें प्रोटेक्ट करना है only those animals, सिर्फ वही animals which are useful to humans, जो हमारे लिए useful हैं. Do you agree or disagree? तो एनिमल्स जो है एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं. कुछ लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ वही एनिमल्स प्रोटेक्ट करने हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है. क्या आप सहमत है कि नहीं? मैंने इसके साथ डिसएग्री करा स्ट्रांगली और मैंने बोला है कि we should protect all animals because all animals का हमारे साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट है हमारे पे. ओके, अब मैंने सारे ऐसे में बता दिया कि वाइल्ड एंड सारे एनिमल्स क्यों प्रोटेक्ट करने चाहिए, नॉट जस्ट दोज एनिमल्स. जैसे वो कहते हैं कि सिर्फ जो हमारे लिए फायदेमंद है, जैसे हम कह लो कि बफेलो है, काऊ है, दूध देती है, चलो उनको बचा लो. और ये जो मतलब कोई और जो हेन्स है वो अंडे देती हैं, इनको बचा लो. जो बाकी मरते हैं हमारे, इनका क्या? ठीक है, पर यही समझाना है आपको, एग्जाम्पल देनी है. मैंने एक बैट स्पीशीज की एग्जाम्पल डाली है, किसी और ऐसे में मैंने उसकी ग्रे हाउंड वुल्फ की एग्जाम्पल डाली है, ग्रे वुल्फ की. ठीक है, अब बैट स्पीशीज की एग्जाम्पल बहुत इजी एग्जाम्पल है. ये एग्जाम्पल आपको मैं समझा देती हूँ, इजी इंग्लिश में आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगी बाद में. जो बैट्स है ना, चमगादड़ कहते हैं जिनको, ठीक है, ये ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है. और ये बैट्स जो है वो कीड़े मकोड़े खाते हैं. अगर ये बैट्स खत्म हो गए, कीड़े मकोड़े बढ़ जाएंगे. अभी हम कुछ दिन पहले एक रीडिंग कर रहे थे जिसमें ऐसी कोई एग्जांपल थी कि अगर ये वाली स्पीशीज खत्म हो गई, ये स्पीशीज बढ़ जाएगी. कौन सी कोई एग्जांपल करी थी, याद है? अगर जो मेरी क्लास में थे पिछले हफ्ते ही शायद करी है. ठीक है, और ऐसे अगर बैट स्पीशीज जो है वो अलिप्त हो गई, कीड़े बढ़ जाएंगे. और कीड़े है वो क्या खाते हैं? हमारी क्रॉप्स. तो वो हमारी सारी क्रॉप्स खा जाएंगे, हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा. आपने कभी टिड्डी दल सुना है? क्या होता है टिड्डी दल? नहीं सुना? एक आर्मी की तरह टिड्डियां आती है और देखते ही देखते सारी क्रॉप्स को खा जाती है. सुना है मैम. सुना है? मैंने सुना तो बहुत था, पर मैंने किसी मूवी में इनको डायरेक्टली इसमें फिल्माइज करते हुए देखा है कि कैसे वो देखते ही देखते फसल तबाह कर जाती है. ठीक है, तो ये अगर बैट्स खत्म हो गई तो अल्टीमेटली हमें लगता है ना कि बैट्स का हमारे पे क्या फायदा है, बैट्स मरती हैं मर जाए, क्या फर्क पड़ता है? पर फर्क पड़ता है. ठीक है, ऐसे वो ग्रे वुल्फ की जो एग्जांपल है वो मैंने दी थी कि एक एनिमल के खत्म होने से एक चेन सेटअप हो जाती है जिससे सबको फर्क पड़ता है. जैसे वो ग्रे वुल्फ खत्म हो गया, येलोस्टोन नेशनल पार्क में बहुत कम रह गए थे ग्रे स्टोन. अब ये ग्रे हाउंड वुल्फ, अब ये जो वुल्फ थे ना, ये खाते थे एल्क को. एल्क एक हिरन की तरह का जानवर होता है. अब एल्क जो है वो बहुत बढ़ गए, वो इतने बढ़ गए. एल्क क्या खाते हैं? पेड़ पौधे. और उन्होंने सारे जो एक झरना था वहां पे, झरना है वहां पे, उसके आसपास जितने पेड़ थे ना वो खा लिए. अब जो पेड़ थे ना, झरने के पानी को ठंडा रखते थे, झरने का पानी गर्म होने लग गया. झरने के अंदर जितनी फिश थी वो सब मरने लग गई. एक बिहेवर करके एनिमल होता है जो वो बनाता है, वहां पे बांध बना देता है, डैम्स बना देता है झरने में. उसने डैम्स बनाने बंद कर दिए. वहां पे बतखें बढ़ती थी बिकॉज पानी खड़ा रहता था, वो बतखें खत्म होने लग गई. तो एक वुल्फ उसको रिस्टोर करा फिर गवर्नमेंट ने एफर्ट्स करके, तो ये सारे चेंजेस वापस आए
और ये सारे एनिमल्स वापस आने लग गए। आप देखो एक चेन रिएक्शन है, वो किसी और हिस्से में मैंने वो पॉइंट डाला हुआ है, तो आपको समझ आ गया। आप कोई भी एग्जांपल डाल सकते हो जो आपको डालना इजी लगे। बैट्स वाला इजी एग्जांपल है, ठीक है। ओके, सेकेंडली वाइल्ड एनिमल जो है हमें मेडिसिन एंड फर देते हैं, दूसरे पैरे में मैंने वो कर दिया। तीसरा मैंने पैरे में कर दिया कि वाइल्ड एनिमल्स की एस्थेटिक अपील है। एस्थेटिक अपील होती है जो आंखों को सुंदर दिखने वाली अपील है। दे आर ब्यूटीफुल क्रिएचर्स ऑफ नेचर एंड आर पार्ट ऑफ आवर बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। और जो साइंटिस्ट है इनका बिहेवियर स्टडी करते हैं। फिर देखो कितने फायदे हमने लिख दिया और हमने कह दिया कि सारे एनिमल्स बचाने चाहिए, तो मैंने स्ट्रांगली क्या करा है, डिसएग्री। ओके, ये समझ आ गया आपको। ऐसे एक सिमिलर ऐसे है, ये वाला ऐसे है, इसको भी पढ़ो। Some animal species such as dinosaurs and dodos, नीचे लिखा हुआ है सिमिलर ऐसे, नहीं लिखा आपकी बुक में? नहीं, वो पुरानी वाली बुक में ना ये लिखा हुआ है नीचे, हाँ लिखा हुआ है। Dinosaurs and dodos became extinct as a result of natural causes. अब डायनासोर क्यों एक्सटिंक्ट हुए? हमने डायनासोर्स पे कुछ रीडिंग्स करी है अभी, तो हमें पता है ना डायनासोर्स क्यों एक्सटिंक्ट हुए। ह्यूमंस की वजह से थोड़ी हुए एक्सटिंक्ट, नेचुरल कॉजेस की वजह से हुए। तो ये उन्होंने फैक्ट दे दिया। तो वो फिर फैक्ट दे के कहते हैं कि ये जो एक्सटिंक्शन है ना, ये जो अलिप्त होना है, ये नॉर्मल पार्ट ऑफ वर्ल्ड्स एवोल्यूशन है, ये नॉर्मल है, इसलिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए आज के एंडेंजर्ड एनिमल्स को बचाने के लिए। अब आप बताओ, ये अगर आप इस ऐसे से डिसएग्री करोगे कि हमें करना चाहिए, फिर उसके बाद आपने क्या पॉइंट्स डालने हैं? जो अभी हमने ऐसे में करे वही पॉइंट्स डालोगे ना? हाँ, तो फिर ये ऐसे अगर आया फिर भी आपको समझ आ गया ना आपने क्या करना है, डिसएग्री करना है और कहना दैट वी शुड टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट द डिसअपीयरेंस बिकॉज ऑल एनिमल्स आर नीडेड फॉर ह्यूमंस, फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस। फिर मैंने एक छोटी सी कोटेशन किसी ऐसे में डाली हुई है। वो कोटेशन ना, इस ऐसे में 6 वर्ड्स की पूरी कोटेशन है। वैसे लंबी कोटेशंस मत डालना बिकॉज ये डिस्करेज की जाती हैं आइल्स के ऐसे में। एनिमल्स गॉन, प्लांट्स गॉन, ह्यूमंस गॉन। ये तो याद होगी सुनते ही एक बार में है। हाँ, एनिमल्स गॉन, प्लांट्स गॉन, ह्यूमंस गॉन। अगर एनिमल्स गॉन हो गए ना और प्लांट्स भी गॉन हो गए तो ह्यूमंस नहीं रह सकते, फिर ह्यूमंस आल्सो गॉन। ओके, सो दैट इज द कोटेशन। चलो अब अगला ऐसे देखते हैं। अब लिख लोगे ना ये वाला ऐसे? Many animal species in the world are becoming extinct. ये उन्होंने फैक्ट दे दिया है कि बहुत सी एनिमल स्पीशीज हैं दुनिया की जो एक्सटिंक्ट हो रही हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये कहते हैं कि some people say, कुछ लोग कहते हैं कि countries and individuals, जो countries हैं, देश हैं और जो लोग हैं, सिर्फ उन्हीं एनिमल्स को बचाएं, प्रोटेक्ट दीज नहीं, वो कहते हैं कि इन एनिमल्स को मरने से बचाएं, और बाकी लोग कहते हैं कि एनिमल्स को फिलहाल मारो गोली और ह्यूमंस की प्रॉब्लम्स को करो सॉल्व, ठीक है। तो गोली नहीं मारो, जस्ट अ वे ऑफ सेइंग कि उनके बारे में मत सोचो, डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन, ठीक है। सो मेनी एनिमल्स, ये आप कुछ लोग कहते हैं कि इनको बचाओ, उसके लिए तो आपके पास पॉइंट्स हैं। एनिमल्स को क्यों बचाना चाहिए? क्यों कुछ लोग कहते हैं एनिमल्स को बचाओ? पॉइंट्स हैं ना आपके पास। फिर दूसरे पैरे में लिखना है क्यों कुछ लोग कहते हैं कि पहले ह्यूमन प्रॉब्लम को देखो। उनके ये लिख देना कि ह्यूमंस, पहले ह्यूमंस पे स्पेंड करो भाई, वो बेचारे मर रहे हैं, खाने की कमी है, उनको रहने के लिए घर नहीं है, जॉब्स नहीं है, उनकी पहले प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो उनका अपना व्यू है, उनके व्यू को लिख दोगे एक पैरे में, ठीक है। और फिर एक पैरा अपना अपने व्यू का बना देना, उसमें एनिमल कंजर्वेशन करनी जरूरी है, अलग से पॉइंट डाल देना, क्योंकि आपके पास पॉइंट्स तो काफी ज्यादा है। एक पैरे में पहले में सारे पॉइंट्स आएंगे नहीं, 1-2 पॉइंट्स उनके पैरे में डाल दो, फिर 1-2 अपने पैरे में डाल के इस ऐसे को रीइंफोर्स कर दो कि एनिमल्स को बचाना चाहिए, ठीक है। और इसमें ये लिखना है इन दिस एसे आई विल डिस्कस, ये डिस्कस एसे है तो इसमें सम पीपल से दिस, अदर पीपल से दैट। इन दिस एसे आई विल डिस्कस बोथ पर्सपेक्टिव्स। आई बिलीव दैट ह्यूमन एनिमल कंजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के लिए ही बहुत जरूरी है। तो ह्यूमंस का जो सोच रहे हैं वो ये भी सोचे कि एनिमल्स को कंजर्व करना भी इनफैक्ट ह्यूमंस के लिए करने के बराबर है। उनकी प्रॉब्लम्स के तो आपने पॉइंट्स डाल ही देने हैं कि वो क्यों कहते हैं। तो ये समझ आ गई आपको इंट्रो? Yes, ma'am. Okay, next essay is, some people say that too much attention and resources are given to protect wild animals and birds.
कुछ लोग कहते हैं कि टू मच अटेंशन, बहुत ज्यादा अटेंशन दी जा रही है वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स को बचाने की, प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या आप इससे सहमत हो कि असहमत हो? पता है टू मच अटेंशन दी जा रही है, वो लोग कहते हैं टू मच दी जा रही है। मैंने डिसएग्री करा है। मैंने कहा है कि एनिमल्स और प्लांट्स को बचाने के लिए जितना भी कर लो वो कभी भी टू मच हो ही नहीं सकता, वो कम है। तो समझ आ गया मेरा पॉइंट? Yes, ma'am. तो मैंने ये लिखा है कि जितना भी कर लो कम है, इनको बचाना बहुत जरूरी है, जितना भी कर लो कम है। मैंने डिसएग्री करा है कि अलॉट किया जा रहा है। मेरा मानना है कि जितना भी करा जा रहा है वो अलॉट कभी भी नहीं हो सकता, इनके लिए तो और भी करना चाहिए, इससे भी ज्यादा करना चाहिए। पर आप पता है कि आप इससे एग्री करके भी कर सकते हो कि टू मच अटेंशन रिसोर्सेज आर गिवन एंड आई थिंक इट इज वेल जस्टिफाइड। ये भी कर सकते हो कि ये वेल जस्टिफाइड है, फिर उनकी इंपॉर्टेंस दे दो कि अगर सरकार ऐसा कर रही है तो वो भी ठीक है, ठीक है, और टू मच कर रही है तो सही कर रही है, ऐसे कर दो। पर मैंने उसमें में लिख दिया कि टू मच तो कभी भी नहीं हो सकता इनके लिए, तो जितना करो उतना ही कम है। तो बात तो वही है, अंदर तो आपने वही पॉइंट्स डालने हैं। क्या डालने हैं? इनकी इंपॉर्टेंस। समझ आ गया ऐसे? यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट ऐसे है, इसका एक सिमिलर ऐसे है, wild animals have no place in the 21st century and their protection is a waste of resources. To what extent do you agree or disagree? क्या करोगे? एग्री करोगे कि उनको प्रोटेक्ट ना करो, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है, कि डिसएग्री करोगे प्रोटेक्ट करो? डिसएग्री। डिसएग्री करो और कहो कि इनको तो प्रोटेक्ट करो, भी बहुत जरूरी है इनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। और फिर वही वाले पॉइंट्स डाल दो क्यों जरूरी है, वो आपके पास हैं पॉइंट्स, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज। ह्यूमन एक्टिविटीज का नेगेटिव इफेक्ट है प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज पे। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत लेट हो चुका है, अब इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। बाकी कहते हैं इफेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। दोनों व्यूज डिस्कस करो और अपना ओपिनियन दो। समझ आ गया ऐसे? अब आपने एक व्यू में कहना है क्यों कुछ लोग कहते हैं बहुत लेट हो चुका है, वो एग्जांपल्स डाल दो एक दो कि ये देखो जी ये तो लिप्त हो चुका है, अब इसको वापस तो ला नहीं सकते। जो एक्सटिंक्ट हो गया वो वापस आ सकता है कभी, जो हो गया है? नो। जो बाकी लोग हैं वो कहते हैं कि चलो जो स्पीशीज मर गई, पर अभी बहुत लेट नहीं हुआ, जो बाकी मरने वाली है उनको बचाया जा सकता है। अब ये समझ आ गया उनका पॉइंट ऑफ व्यू? यस मैम। इफेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, ठीक है। और फिर अपना व्यू दे दो कि सेविंग जो है वो ओवरवेलमिंग टास्क तो है, पर अगर सारे जने करे तो बहुत कुछ किया जा सकता है और करना भी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे है, far too little has been done to prevent animals and plants from dying out, although people have been aware of this problem for a long time. अब ये ना सिमिलर ऐसे एनवायरनमेंट में भी है, far too little people are not doing anything for the environment although people have been aware of this. वो उसी लाइन पे यस से है कि लोगों को पता है एनिमल्स एंड प्लांट्स को बचाना चाहिए, पर कुछ कर नहीं रहे। क्यों नहीं कुछ कर रहे? और ये प्रॉब्लम सोल्यूशन आ गया। किसने बोला था प्रॉब्लम सोल्यूशन कराओ ऐसे? वन ऑफ द स्टूडेंट्स टोल्ड मी ना, मैंने बोला था मैम। हाँ जेनिल। सो प्रॉब्लम सोल्यूशन आ गया इससे। मेरी ना ये मैं अपने नवा शहर के सेंटर में क्लास ले रही हूँ और ये सड़क से लोग पता नहीं है ऊंची ऊंची म्यूजिक लगा के क्यों अपनी ट्रॉली और ट्रैक्टरों पे निकल रहे। I hope it is not a big disturbance to you all. नहीं मैम, ज्यादा आवाज नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? यहाँ तो बहुत कमरे में आवाज आ, ऐसे लग रहा है जैसे बाहर ढोल ढमक्के बजा रहे हैं जोर जोर से। एक ना हमारा घर मेन रोड पे था पहले, जब मैं हॉस्पिटल में रहती थी, तो हमारे घर के रात को 10:30 बजे हमारे टाउन के कोई बिजनेसमैन, उनके बच्चे बिगड़े हुए, वो ऊंची ऊंची वो कार के अंदर ऊंची ऊंची म्यूजिक नहीं लगता जैसे पूरी सड़क हिल जाती है जिससे, हाँ यस। वो लगा के रोज निकलते थे 10:30 बजे। और हमें तो इतनी डिस्टर्बेंस होती थी, मैं टाइम पे सो जाती थी, कई बार तो उठ जाती थी उनकी आवाज से। और पीछे वालों के घर में हम एक दिन बैठे थे, हमारे नेबर्स, तो उनको हमने बताई कि हमारी तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। कहते अगर मैं आपकी जगह हो ना, मैं ईंट लेके वहां खड़ा हो जाऊं 10:30 बजे और ऊपर उनकी कार के ऊपर जोर से ईंट मारू रोज। मैंने कहा भी हम तो नहीं मार सकते, पर हमें एक और सोल्यूशन आ गया। कहते क्या? मैं कहा कुछ दिन आप हमारे घर में आके रह लो, तो ईंट वाला काम आप कर, उनकी जो कार है उनको पता चलेगी ये
वो इतने बिगड़े हुए थे बच्चे, पता नहीं कैसे सुधरे हैं। एक बार हम कहीं जा रहे थे, रास्ते में हमने देखा उनकी कार खड़ी है और लड़कों को कोई पीट रहा है ऑटो से। हम बड़े खुश हो के वहां से निकले, शुक्र है इनको कोई सबक सिखाने वाला है। एनीवेज, दैट इज सेपरेट। नाउ वी कम टू दिस एसे। सो व्हाई डू पीपल नॉट डू एनीथिंग? तो ये रीजंस देने हैं। तो इस ऐसे को हैंडल करने का तरीका है कि इंट्रोडक्शन में आपने ये लिख देना है, एग्जामिनर को बता देना है कि मैं इसके रीजंस और सॉल्यूशंस बताने वाला हूं ऐसे में, और फिर आपने एक पैरे में रीजंस या एक या दो पैरा में रीजंस और एक या दो पैरा में सॉल्यूशंस देने हैं। तो मेरे इस ऐसे में 2 पैरास में रीजंस हैं और फिर सॉल्यूशंस एक पैरे में। ओके, so it is irrefutable that people know about the endangered animal and plant species but do not take enough efforts to save them. In the following paragraphs, I shall discuss the reasons why people are so indifferent towards this problem and suggest some ways forward or suggest some methods to address the issue. ठीक है, जनरल समझ आ गई इंट्रोडक्शन? हाँ मैम। और कंक्लूजन में क्या लिखना है? कंक्लूजन में लिखना है, summing up, there are many reasons for the lackadaisical attitude about environmental issues among people and actions need to be taken to address the situation. Lackadaisical. Lackadaisical, ये देखो, lackadaisical, lackadaisical attitude, lackadaisical approach, not showing enough care or enthusiasm, lackadaisical approach. ठीक है, so why people have this lackadaisical approach? ये वर्ड आप कर सकते हो, अब तो मैंने आपको करा दिया, जो वर्ड ऐसे आ जाए उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, वैसे मैं डिफिकल्ट वर्ड्स के फेवर में नहीं हूँ, पर इनडिफरेंट एटीट्यूड, इनडिफरेंट मैंने ऊपर डाल दिया था, यहाँ पे lackadaisical हो गया, not showing. So there are many reasons for the lackadaisical attitude about environmental issues. मैंने environmental issues लिख लिया नहीं, about animal issues करो ना। Animal extinction issues among people and actions need to be taken. Issues, animal extinction issues among people भी मैं काट देती हूँ, यहाँ and की जगह but actions can be taken. To address this situation. ठीक है, conclusion समझ आ गई? Okay. हाँ मैम। उसके बाद हमने there are many reasons why people are doing so little for the protection of animals and plants. ये टॉपिक सेंटेंस है, फिर रीजंस दे दिए। एक तो लोग कहते हैं कि हम अकेले क्या कर लेंगे, ये तो गवर्नमेंट ही करेगी, उनको पता है, पर वो सोचते हैं कि हमारे करने से कुछ नहीं होने वाला। सेकेंडली, लोग इतने अकस्टम्ड हो गए हैं कि वो ये जो एनवायरनमेंट है, हम देखो एनिमल्स प्लांट्स क्यों मर रहे हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट हैम्पर हो रहा है उनके रहने का। तो लोग अपनी लग्जरीज के लिए इतना यूज्ड हो गए कि एनवायरनमेंट का सोच ही नहीं रहे, उसकी वजह से एनिमल्स एंड प्लांट्स जो है वो जा रहे हैं। ठीक है, in addition, although people are aware about animals and plants dying, they are unaware about how dangerous the consequences of the extinction of animals and plant species can be for humankind. For instance, फिर वो एग्जांपल दे दो बैट्स की, ठीक है, फिर सॉल्यूशंस बता दो कि अवेयरनेस कैंपेन्स लगानी चाहिए गवर्नमेंट को, लोगों को कहो कि जैसे एनिमल्स एंड प्लांट्स, जैसे ये एनजीओज है, एसपीसीए, आपने सुना हुआ एसपीसीए को, सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स, मेनका गांधी हेड करती है इसको, और ऐसे और भी ऑर्गेनाइजेशंस है, दे कम फॉरवर्ड टू सेव द एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये ऐसे दे शुड बी, यू नो, दे शुड कम फॉरवर्ड एंड डू। तो ये आपको समझ आ गया इससे प्रॉब्लम सॉल्यूशन? यस मैम। तो सिमिलर एनवायरनमेंट कैसे है, दिस इज वेरी सिमिलर, ऐसे कि लोग क्यों नहीं करते और क्या करना चाहिए, अवेयरनेस कराओ, वही बातें लिखनी है। ठीक है, some people think people can exploit animals for any purpose they need while others do not think so. Discuss both sides and give your opinion. ये discuss ऐसे है, कुछ लोग कहते हैं कि
एनिमल्स को ह्यूमन बीइंग्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और दूसरे लोग कह रहे हैं कि ऐसे नहीं कर सकते, एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते एनिमल्स को, एनिमल्स आल्सो हैव राइट्स। आपने दोनों ओपिनियंस डिस्कस करने हैं और फिर अपना ओपिनियन देना है, ठीक है? ये आप पढ़ लेना अपने आप। मैंने एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन का एसे कराना है आपको। ये जो अगला एसे है वो भी सिमिलर है। इन द मॉडर्न वर्ल्ड इट इज नो लॉन्गर नेसेसरी टू यूज एनिमल्स फॉर फूड और फॉर अदर एनिमल प्रोडक्ट्स, फॉर इंस्टेंस क्लोथिंग एंड मेडिसिन। एनिमल्स को फूड के लिए यूज करना, क्लोथिंग के लिए यूज करना, मेडिसिन के लिए यूज करना, दिस इज, जो इससे पिछले वाला एसे है, एनिमल एक्सप्लॉइटेशन। ये एनिमल्स को यूज करना। अब ये इस ऐसे में है कि इन चीजों के लिए एनिमल्स को यूज करना जरूरी नहीं है। आप एग्री करते हो कि डिसएग्री करते हो? आप एग्री करके भी ऐसे बना सकते हो, डिसएग्री करके भी बना सकते हो, ठीक है? और मैंने इस ऐसे को एग्री करके बनाया है दैट वी कैन डू विदाउट एनिमल प्रोडक्ट्स। और फिर मैंने सारा एक पैरा बना दिया है कि हमें खाने में क्यों एनिमल प्रोडक्ट्स के बिना हम अच्छा खाना खा सकते हैं। फिर मैंने क्लोथ्स के बारे में बोल दिया है कि जो प्योर लेदर है या ये शूज, इनके ऐसे फॉ लेदर आ गया, FAUX, फॉ, झूठा लेदर, लुक्स लाइक लेदर बट इट इज नॉट लेदर। तीसरे ऐसे में मैंने बता दिया कि तीसरे पैरे में बता दिया है कि जो एक्सपेरिमेंटेशन भी करते हैं उसके लिए भी आजकल कंप्यूटर सिमुलेटेड एक्सपेरिमेंट्स आ गए हैं जिसमें बिल्कुल भी एनिमल्स को हार्म करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने इसको स्ट्रांगली एग्री करके ऐसे बना दिया और मैंने प्रूव कर दिया है। ये जो 3 पॉइंट्स लिखे थे, एक पैरा उसका बना दिया फूड का, एक एनिमल प्रोडक्ट्स का और एक मेडिसिन का। और मैंने प्रूव कर दिया कि उसके बिना भी अच्छे से रहा जा सकता है। तो एनिमल्स को बिल्कुल एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। आप डिसएग्री करके भी बना सकते हो कि एनिमल एक्सप्लॉइटेशन इज जस्टिफाइड बिकॉज गॉड हैज मेड इट दिस वे। ह्यूमन बीइंग्स आर द सुपीरियर मोस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स एंड इट इज देयर राइट टू एक्सप्लॉइट एनिमल्स फॉर देयर यूज। गॉड हैज मेड थिंग्स लाइक दैट। आप ऐसे करके भी बना सकते हो और ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। आप अपने पॉइंट को सपोर्ट कर दो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप कई लोग कहते हैं सिगरेट्स को बैन करना चाहिए। अब आप डिसएग्री करके भी ऐसे बना सकते हो और उसके फायदे लिख सकते हो। आपका व्यू है, आपको लगता है कि सिगरेट स्मोकिंग तो भी ठीक है, किसी को स्ट्रेस होता है तो वो स्मोक करे, अच्छे से करो। फिर जो टोबैको वाले फार्मर्स हैं उनको बहुत फायदा है इसका, वो बेचारे मर जाएंगे अगर टोबैको बैन हो गया बिल्कुल। फिर एक पैरा बना दो, इससे सरकार को बड़े टैक्सेस आ रहे हैं इसके, आपको पता है इसमें टैक्सेस डबल है, तो सरकार की इकोनॉमी शटर हो जाएगी इसको बैन किया तो। इसलिए सिगरेट को बैन नहीं करना चाहिए। आप किसी भी चीज को आप सोच सकते हो कि सिगरेट की बैनिंग को भी आप जो है इसके भी फेवर में, इसके अगेंस्ट भी लिख के ऐसे बना सकते हो। अगर आप सपोर्ट कर दो आपका ऐसे सही है एज फार एज IELTS इज कंसर्न्ड। ओके, सो इन दिस ऐसे आल्सो यू कैन राइट इट जस्ट द ऑपोजिट। मैंने इसको एग्री करके, स्ट्रांगली एग्री करके बनाया, स्ट्रांगली डिसएग्री करके भी बना सकते हो। ये समझ आ गई मेरी बात आपको? यस मैम। यू कैन जस्ट डू व्हाट यू फील लाइक, अपने हिसाब से आप पॉइंट्स बना सकते हो। अब ये एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन का ऐसे है, सेम ऐसे GT में भी आया हुआ है। एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट ऐसे फॉर टुडे। हाँ, लास्ट ऐसे एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन का। इसमें है कि कुछ लोग कहते हैं कि एनिमल्स को एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज करना क्रूअल है, और दूसरे लोग कहते हैं कि जरूरी है। क्रूअल होता है जुल्म वाली चीज होती ना, तो दूसरे कहते हैं कि जरूरी है। दोनों व्यूज डिस्कस करने हैं। जो कहते हैं क्रूअल है वो लिख दो कि वो कहते हैं कि एनिमल्स भी सेंटिएंट बीइंग्स है। सेंटिएंट, सेंटीमेंट के स्पेलिंग्स आपको आते हैं, M हटा दो, सेंटिएंट बन जाता है। सेंटिएंट होता है जो प्लेजर एंड पेन फील कर सकते हैं पर बोल के बता नहीं सकते, ठीक है? तो प्लेजर एंड पेन फील कर सकते हैं पर बोल के बता नहीं। कल नॉटी लगा हुआ था, गुरगुर कर, मैंने कहा नॉटी यूज वर्ड्स, आई कांट अंडरस्टैंड। पर वो अपनी बात बता रहा था कि मुझे छोड़ो, कोई आया है मैंने काटना है। मतलब उसको काटने का बड़ा शौक है, बहुत शौक है, कोई आए बस। और वो मेरे को भी काटने को पड़ता है, फिर मैं झिड़की मारती हूँ, फिर ऐसे बैठ जाता है कि काटना था पर अब आप अलाउ ही नहीं कर रहे हो। तो वो ऐसी शक्लें बनाता है, ऐसी आवाजें निकालता है, मैं बता नहीं सकती। मतलब वर्ड्स दे दो ना उसको तो वो वर्ड्स भी डाल दे उसमें। तो वो मतलब सेंटिएंट बीइंग्स होते हैं हु फील प्लेजर एंड पेन बट कांट स्पीक इट आउट।
ठीक है, तो सेंटिएंट बीइंग्स है, उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। फिर आप ये लिख सकते हो कि उन एक्सपेरिमेंट्स नहीं करनी चाहिए। फिर आप लिख सकते हो कि कंप्यूटर सिमुलेटेड है, आजकल एक्सपेरिमेंट्स हो जाते हैं, तो इनको एक्सप्लॉइट करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एनिमल्स आर नॉट ह्यूमंस, जो उस पर इफेक्ट देखा गया किसी दवाई का, जरूरी थोड़ी है ह्यूमन बीइंग पे सेम इफेक्ट हो, तो इसलिए भी उनको एक्सप्लॉइट करने की जरूरत नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि करना चाहिए, वो ये कहते हैं कि एनिमल ह्यूमंस के लिए अगर कोई चीज, अगर एक मैंने एग्जांपल डाली है इसमें, जो मैंने मेडिकल कॉलेज में गई थी पढ़ने 77 में, तब हमें एक कॉलेज में कराई थी एग्जांपल, थैलिडोमाइड ड्रग थी 1952 में, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज की गई थी यूके में फॉर द वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी। और जितने भी बच्चे पैदा हुए उनकी ना लिम्स मिसिंग थी, पता है, हाथ लगे हुए थे पूरे शोल्डर्स पे और पैर लगे हुए थे हिप्स पे, लिम्स ही मिसिंग थी, ना बाजू ना टांगे। आप इमेजिन करो उन लोगों ने जिंदगी कैसी काटी होगी। और जब तक पता चला कि ये जो दवाई है ये रिस्पॉन्सिबल है, जब तक बहुत देर हो चुकी थी। और ये 77 में मैं मेडिकल कॉलेज गई थी, तब हमें ये एग्जाम्पल कराया था, तब ज्यादा पुराना नहीं था, मतलब वो लोग अभी, कई लोग उनमें से जिंदा थे और जो ऐसे पैदा हुए थे। और ये एनिमल की अगर एक्सपेरिमेंटेशन पहले की गई होती तो इतने लोगों की जिंदगियां खराब नहीं होती। और उसके बाद ना, अब ये कुछ साल पहले, 5-7 साल पहले, वही ड्रग एक पूरी तरह से ब्लड कैंसर को क्योर कर रही है, पता है, 100% क्योर टू दैट ब्लड कैंसर नाउ बिकॉज ऑफ दैट सेम ड्रग। एक्सपेरिमेंट्स के बाद इतने एक्सपेरिमेंट्स हुए उस पर। So anyways, that is just to give you, add to your general knowledge. But ये example मैंने डाला है कि इसलिए वो लोग कहते हैं कि animal experimentation तो बहुत जरूरी है, because we have to save humans, ठीक है। और बाकी अगर हमने किसी दवाई का, ये पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपको बिना पढ़े आने नहीं वाला। किसी भी दवाई का अगर हमने असर देखना है ओवर जनरेशंस, हमने देखना है कि अगर आप एक जनरेशन को ये दवाई देते हो तो उसके आगे बच्चों में और उसके आगे बच्चों पे इस दवाई का इफेक्ट कहाँ तक जाता है, तो वो सिर्फ एनिमल्स पे पॉसिबल है, गिनी पिग्स पे, जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स होते हैं, बिकॉज देयर लाइफ स्पैन इज जस्ट 3 to 4 years। ह्यूमन बींग्स पे अगर वो जनरेशन का इफेक्ट देखोगे तो उसके साथ साथ साइंटिस्ट की जनरेशन भी बदल जाएगी। समझ आई ये पॉइंट? ठीक है, तो इसलिए उनपे एनिमल्स पे देखना इजी है, इसलिए एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन इज जस्टिफाइड। और फिर आप, मैंने इसमें एक्सेप्टेबल कर दिया अपने व्यू में कि एक्सेप्टेबल है। और वैसे आप डिफरेंट भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो अपने व्यू में कि नहीं होनी चाहिए, और वही वाले पॉइंट्स को एक्सपैंड करके लिख दो जो ऊपर है। जो ऊपर दिया है उनमें से एक आध पॉइंट ऊपर नहीं लिखना, दूसरे पैरे में डाल देना कि व्हाई दे शुड, इट शुड नॉट बी डन, एंड यू कैन मेक योर एसे। So this was the class for today. I hope it has been productive for you. We've discussed space research, we've discussed all animal essays, and we have also discussed one essay on individual greed and selfishness has been the basics. So आज काफी ऐसे discuss हो गए. I hope it has been a productive class for you. I'll be sharing this file with you right now. Okay. And tomorrow we have a class on pie charts for the academic students after the reading class. So there will be no writing class for the GT students tomorrow, but there will be a class of reading at 10, and after that there will be a class on the pie charts. So okay then, see you tomorrow. Any questions, anybody? Hello ma'am. Yes. Ma'am, my name is Diksha. I have attended your class for first time. It was really very great. Okay, thank you. I'm referring your book for essays, academic. Okay, so whatever file I'll share na, change the, I make minor changes in the essay every time I teach. So do Yes. these essays from this file. Okay. Yes, You yes, can yes. mark it in your book that this essay is from the file, and save these files somewhere. Okay. Yes, On yes. your, I yeah. do that. Ma'am, whenever I'm reading the essay, I understand whole essay, but when it's time for me to check, to test me, and I write the essay, that time what happens, I manage to write this introduction first para, but while writing the second para, I don't know how to start it. Means I On the have other hand, ideas. it depends on whether you are continuing the points or you are giving the opposite points. So you begin it with in addition, or you can begin it with on the other hand, or however you read these files now.
Okay, these have been, Okay. you will come to know that comes. Okay. मैम Yes. मैं आज आजकल मतलब वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सीख रहा हूँ, हाँ, तो उसका लाइक यूज ऐसे में कितनी बार होना चाहिए मिनिमम? 1-2 बस. और वो कोई भी लाइक इंट्रो से लेके कंक्लूजन के बीच में कब कहीं भी? हाँ, और क्या, वाइल डाल दो, वाइल वाला कॉम्प्लेक्स हो गया. हाँ, आप ना ऐसा 15 वर्ड्स वाला सेंटेंस भी कॉम्प्लेक्स लिख सकते हो. आप जो सेंटेंस को 15, 16 या 20 वर्ड से लंबा खींचोगे ना, वो आपका गड़बड़ हो जाएगा. लंबा मत खींचना. हाँ. ठीक है, बस ये है. चलो. ओके मैम, थैंक यू. Okay, see you tomorrow 10. Okay, Thank you, ma'am. bye. Bye. Thank you, ma'am.